Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Indian Politics, Trends and Development, and under this chapter we have done different elections which held from 1989 onwards, and what were the results of the elections, how the governments were formed, and what was the major developments of this period. And we have started regarding development, like the first issue, most important development of this period was Mandal issue, about which we have discussed in the last class, how the recommendation of the Mandal Commission was declared to be implemented by the National Front government under the Prime Ministership of VP Singh. And then we see that how the whole country divided into two groups, and there was so much violence and controversy regarding this issue. The matter went in a court as well, Indira Sohani case, about which we have discussed. So in this way, what was the implication? We can say the most important thing is the implication of all these development on Indian politics. The implication was that the OBCs now started to play a very important role in the Indian politics. Now the people belonging to OBC communities, they themselves became very much aware of their identity. Before that they were not that much aware of their identity, but now they started to assert their identity, and so many political parties started to take up the issue of OBCs, that they are in support of the promotion and protection of the interests of the OBCs. And in the similar time, इसी time में 1980 से ही actually we have seen that it was started the participation of Dalits, the organization of Dalits. The Dalits were started to be organized themselves in the form of political party, and it started with BAMSEF, which was an employees federation. But actually this organization was not an ordinary trade union. It was mainly there to support the SCs, STs and OBCs and other minorities. And here comes the concept of Bahujan. These people, the people belonging to SC, ST, OBCs and minorities, they started to express this view that if we all are united, then we will not remain minority, but we will become Bahujan. And consequently Bahujan Samaj Party, BSP, was formed by Kansi Ram, the BSP founder of the BSP. And this BSP was mainly considered to be a party of Dalit. It was mainly supported by the Dalit voters, and the reasons were Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. But in the following elections, like the election of 1989 and 1991, we find that this BSP achieved a very important place in the politics of UP, and एसपी बीएसपी की कॉम्बिनेशन वाली गवर्नमेंट भी बनती है यूपी में. बट nowadays we see that it's not कि दलित्स की पार्टी जैसे मानी जाती है बीएसपी, एंड एसपी इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्टी ऑफ ओबीसीज. तो ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत कोऑर्डिनेशन है, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, है ना. तो इस तरह से ये जो पॉलिटिक्स है उसमें चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं. पार्टिसिपेशन जो दलित्स का है वो बढ़ जाता है, ओबीसीज का बढ़ जाता है, एंड ऑर्गेनाइज करना भी वो अपने आप को स्टार्ट कर देते हैं. एंड साइड बाय साइड वन मोर डेवलपमेंट वाज टेकिंग प्लेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स, दैट वाज a new concept of Hindutva was coming into being. And the BJP, which was earlier Bharatiya Jan Sangh, which was a part of Janata government in 1977. After when Janata government collapsed, then this Bharatiya Jan Sangh turned into BJP in the year 1980, and this earlier the ideology of BJP was Gandhian socialism, but later, because it could not get anything from this ideology, its failure in the elections of 1980 and 84
compelled it to change its ideology, and now it pursued the politics of, it started pursuing the politics of Hindutva and adopted the strategy of mobilizing the Hindus. So we were doing this Hindutva. This term was originally given by Veer Savarkar. हिंदुत्व, ओके, जिसका अगर लिटरल मीनिंग हम देखें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है हिंदूनेस, ठीक है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इट वाज डिफाइंड बाय वीर सावरकर एज द बेसिस ऑफ इंडियन इन नेशनहुड। इंडियन नेशनहुड का ये बेसिस है हिंदुत्व, बिकॉज इनका ये कहना था कि जो इंडिया है दैट शुड नॉट ओनली बी एक्सेप्टेड एज फादरलैंड बट इट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एज होली लैंड। इट्स नॉट योर पितृभू, इट्स ऑल्सो योर पुण्यभू। And the people who supported Hindutva, they were of the opinion that a strong nation can be built only on the basis of a strong and united national culture. And how this, what is the national culture of India? Hindutva. Hindutva is the national culture. Hindu culture is the national culture of India, and this is all about Hindutva. And now we will focus on two developments which took place around 1986 and which were the most important reason for this politics of BJP as a Hindutva party. So the first incident was Shahbanu case, which occurred in the year 1985. Shahbanu case 1985. In this case what happened that a 62-year Muslim woman was divorced, ठीक है। जब उसको डिवोर्स दिया जाता है तो सी फाइल्ड अ केस फॉर मेंटेनेंस, है ना। डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस मिलना हमारा ये दिस इज नॉट अ केस विथ दिस इस्लामिक पर्सनल लॉ। अगर इस्लामिक पर्सनल लॉ को देखेंगे तो उसमें मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलता, बट दिस लेडी सी वाज 62 years old. So after being divorced she filed this petition for getting the maintenance from her former husband. So in this case what was the ruling of the Supreme Court? The Supreme Court ruled that yes, she must get maintenance from her former husband because her age, look at her age, she is 62 years old, and now if at 62 years old she is being divorced, then she must be given maintenance. So the Supreme Court ruled in her favor. Now what happened that the conservative Muslims, the orthodox Muslims, they started seeing the order of the Supreme Court as an interference in Muslim personal law, है ना। हर कम्युनिटी का अपना पर्सनल लॉ होता है, जैसे हिंदूज का भी पर्सनल लॉ है, पारसीज का होता है, क्रिश्चियंस का होता है, हर किसी का अपना पर्सनल लॉ होता है। पर्सनल लॉ इज अबाउट मैरिज, डाइवर्स, अडॉप्शन, ऑल दीज थिंग्स आर कम अंडर पर्सनल लॉ। तो जो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ था उसमें ये इस बात की बिल्कुल भी जिक्र नहीं है कि जो जिसको डिवोर्स दिया जा रहा है उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ओके, सो दिस वाज मुस्लिम पर्सनल लॉ, है ना। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें मना किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे मिलना चाहिए मेंटेनेंस। तो अब जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे उन्होंने वो कहा, उनका ये कहना हुआ कि हमारी जो पर्सनल लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन आवर पर्सनल लॉ, एंड दे डिमांडेड some of the Muslim leaders, they demanded that it should be stopped. This kind of interference should not be there. And what happened that the government passed in this situation, the government supported the Orthodox Muslims because the government passed the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act of 1986. Muslim women
Muslim women this protection of rights on divorce. ठीक है, Muslim women protection of rights on divorce. It was an act. It was a law. So which was made in the year 1986. Okay, so this act. अब ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, दिस एक्ट वाज एक्चुअली in favor of the Orthodox Muslims. So according to this law, what was done by the government, that it nullified the judgment of the Supreme Court. It means that by this law the verdict of the Supreme Court was nullified. Now Savarno was not supposed to get maintenance, because act कह रहा है कि नहीं, सावर्णों जो मुस्लिम वुमेन जिनको डाइवोर्स मिला है, दे विल नॉट बी गिवन मेंटेनेंस, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस देना चाहिए. तो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अ प्रोग्रेसिव जजमेंट, है ना. बट दिस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिग्रेसिव, पीछे जाने वाला था. बट व्हाई गवर्नमेंट डिड दिस? Because the government wanted to appease the conservative Muslims, because the government is based on the votes of the Muslims. Muslim votes are very much important for the government, because the government was of राजीव गांधी. यू जस्ट रिमेंबर 1986 की बात हो रही है. 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन के बाद जो इलेक्शन होता है, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलती है और कांग्रेस जो है उसकी रूल हो जाती है. राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. सो दिस वॉज डन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी. ओके, एंड नाउ वी सी that this action of government was opposed by many women's organizations, many Muslim groups, and most of the intellectuals, because really this was a regressive act of the government, and the BJP got this opportunity and it started criticizing this action of the Congress government as an unnecessary concession and appeasement of the minority community. ये बहुत बड़ी चीज़ जो कांग्रेस की जो कहेंगे हम खामी थी, जिसको वो छुपा के रखा हुआ था, कि बिल्कुल सामने आ गया कि इन ऑर्डर टू गेट वोट दे कैन इवन पास सच लॉज विच आर कम्प्लीटली अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन, विच आर कम्प्लीटली अगेंस्ट अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी. So this was one of the most important most important event happening of this year, जिसने कि बीजेपी के लिए एक जमीन तैयार कर दी लड़ने के लिए, है ना. जमीन चाहिए ना, किस बेसिस पे हम लड़ेंगे, ये बेसिस बहुत बड़ा आ गया बीजेपी के हाथ में. और इसी समय एक नया डेवलपमेंट होता है, दैट इज अयोध्या डिस्प्यूट. अब ये अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, इसमें हम देखते हैं कि फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फरवरी 1986 में एक ऑर्डर दे दिया, जिसमें कि बाबरी मस्जिद के प्रेमाइस को अनलॉक करने के लिए ये ऑर्डर था. और ये कहा गया कि हिंदूज जो हैं उस बाबरी मस्जिद प्रेमाइस में जाकर के प्रेयर कर सकते हैं, जो कि उनके हिसाब से एक टेम्पल था, जिसके ऊपर टेम्पल को डिमोलिश करके बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था. तो ये जो डिस्प्यूट था ये बहुत पीछे सालों से चला आ रहा था, जो कि बाबरी मस्जिद को लेकर डिस्प्यूट था अयोध्या में. एंड बाबरी मस्जिद जो है वो 16th सेंचुरी का बना हुआ एक मॉस्क है, और इसको बनाने वाले कौन थे? मीर बाकी. मीर बाकी कौन थे? वो मुगल एम्परर बाबर के जनरल थे. अब कुछ हिंदूज का ये कहना था कि ये एक टेम्पल थी इसमें लॉर्ड राम की, क्योंकि ये राम का बर्थ प्लेस माना जाता है अयोध्या. तो ये राम का बर्थ प्लेस वही था, वहीं पर टेम्पल बनी थी, जिसको डिमोलिश करके बाबर ने ये
बाबरी मस्जिद बनाई थी। और इसमें कंट्रोवर्सी बहुत पहले से थी एंड देन इट टुक अ फॉर्म ऑफ अ कोर्ट केस एंड बहुत सालों तक ये चलता रहा। और लेट 1940s में क्या हुआ कि कोर्ट के ऑर्डर से ही मॉस्क को बंद कर दिया गया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कोई वर्शिप नहीं होगी। मॉस्क वाज क्लोज्ड कम्प्लीटली एंड देन दिस हैपेंड कि फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है कि कोर्ट को मॉस्क को खोल दिया जाए ताकि हिंदू डिवोटीज वहाँ पर प्रेयर कर सके, वर्शिप कर सके। सो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे थे दोनों साइड, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही तरफ से मोबिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करते हैं। और इसी समय क्या होता है, ये जो एक लोकल इशू था एक्चुअली इट बिकम अ मेजर नेशनल क्वेश्चन। ये लोकल इशू नहीं रह जाता, एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन जाता है और इसके कारण कम्युनल टेंशन स्टार्ट हो जाती हैं। बीजेपी ने इसको अपना सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल और पॉलिटिकल इशू बनाया और बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी के साथ काम करने वाले जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, इन सब ने बहुत सारे बहुत तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, मोबिलाइज करना, मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए और इस तरह से जो लार्ज स्केल का मोबिलाइजेशन हो रहा था उसके कारण जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी टेंस्ड हो गया और कम्युनल वायलेंसेस स्टार्ट हो गए। और बीजेपी ने पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए क्या किया कि एक बहुत ही बड़ा मार्च स्टार्ट किया जिसको कहा गया रथ यात्रा। This Rath Yatra was a massive march, ठीक है, which started from that सोमनाथ, है ना, सोमनाथ से स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर ये अयोध्या तक इसको आना था पूरा घूमते हुए, फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसका जो कल्मिनेशन हुआ वो क्या हुआ, कल्मिनेशन हुआ दिसंबर 1992 में, जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहे थे और इन सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कार सेवा को ऑर्गेनाइज किया। व्हाट इज कार सेवा? कार इज हैंड, है ना, कार, कर जो होता है हिंदी में कर कहते हैं, कार उसको हम लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, एक्चुअली इट्स कर सेवा। कर मतलब हाथ होता है, तो हाथ से हम अपने टेम्पल को बनाने का काम स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो कर सेवा जो है वो स्टार्ट हो गया एंड बहुत सारे जो वॉलंटरली जो लोग थे वो वहाँ पर जमा हो गए, जो डिवोटीज थे हु वांटेड दैट टेम्पल शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दैट प्लेस, वो वहाँ पर जमा हो गए और वॉलंटरी सर्विस से उन्होंने स्टार्ट कर दी। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरी कंट्री में कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्प्यूटेड साइट है, डिस्प्यूटेड साइट क्या हुआ, बाबरी मस्जिद जो है, डिस्प्यूटेड साइट जो है उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लोग वहाँ पे जमा हो रहे थे, कर सेवक जमा हो रहे थे और जो उनका एम था उससे ये खतरा पैदा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि उसको एंश्योर करना है कि वो यहाँ इसको बचा के रखेंगे, है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने एक अंडरटेकिंग भी दिया सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सीएम के सिग्नेचर के साथ कि वो उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हजारों की संख्या में पीपल जो थे दे गैदर्ड देयर एट अयोध्या एंड ऑन 6 दिसंबर, कार सेवा स्टार्ट होगी थी दिसंबर में, द डे वाज 6 दिसंबर 1992 व्हेन बाबरी मस्जिद वाज एक्चुअली डिमोलिश्ड, है ना। और ये जो डिमोलिशन होता है उसके बाद हिंदू मुस्लिम के क्लासेस होते हैं, राइट्स होते हैं, वायलेंस मुंबई तक होता है बहुत बुरी तरह का। जनवरी 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं मुंबई में और ये पूरी 2 वीक तक रहा। पूरा देश जिसको हम कहें अगर कि इसमें जूझ रहा था, इस हिंदू मुस्लिम की जो आग लगी, नई आग आफ्टर पार्टीशन,
ठीक है। और इसके बाद जो अयोध्या में हुआ, उसके बाद बहुत सारे अदर डेवलपमेंट्स हुए। अदर डेवलपमेंट्स में ये होता है कि उस समय सेंटर में रूल था कांग्रेस का। ये ईयर है 1992। 91 में कांग्रेस इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम नन गांधी a person belonging to not belonging to Gandhi family became the prime minister, that is PV Narasimha Rao। तो अब क्या हुआ, कांग्रेस ने जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस सबको डिसमिस कर दिया। किस बेसिस पे कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, विच वॉज रॉन्ग, विच वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली राइट। ठीक है, हर स्टेट में जहां भी बीजेपी पावर में थी वहां सब जगह प्रेसिडेंट रूल ले आया गया। और इसी समय में एक चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट केस भी रजिस्टर हो गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया, क्योंकि उसने अंडरटेकिंग दिया था कि वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा, बट ही वॉज नॉट he could not keep his promise which was given to the Supreme Court, है ना। तो अब उस पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का ये लगता है, जेल भी जाते हैं। कल्याण सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर थे यूपी के। ठीक है, तो इसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक कमीशन भी अपॉइंट करती है कि देखने के लिए कि आखिर क्यों, किस तरह से, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण मॉस्क का डिमोलिशन हुआ। और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने बीजेपी के उन्होंने डिमोलिशन को कंडेम किया और ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इंडिया की सेक्युलरिज्म के पूरी तरह से अगेंस्ट है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जो डेवलपमेंट्स हुए, जो इंसिडेंट्स हुए, उसको कभी भी हम सही नहीं कह सकते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हो जाता है सेक्युलरिज्म के बीच में। एंड जो क्वेश्चन हमारा कंट्री पार्टीशन के बाद जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो फिर से हमारे सामने आ जाती हैं और सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और ये होता है कि क्या इंडिया एक ऐसी कंट्री ही बना रहेगा जिसमें हर धर्म के लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, इक्वल सिटीजनशिप राइट मिलेगा, या फिर रिलीजन के बेसिस पे चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वो टाइम था जिसमें कि हम देखते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज़ किया गया फॉर इलेक्टोरल पर्पस। और अगर इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को देखें तो हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये इसी प्रीमाइस पे है कि हर रिलीजियस कम्युनिटी जो है उसको फ्रीडम है, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह का उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता है। एंड देयर विल नॉट बी कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है उस पर हम ये देखते हैं कि और भी चीज़ें आगे होती हैं। लाइक फरवरी मार्च 2002 में इसी का ये रिपरकशन था, जिसमें कि हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट राइट्स होते हैं, है ना, गुजरात में। और ये जो गुजरात का जो राइट था मुस्लिम्स के अगेंस्ट, इसको ये माना गया कि ये इट वाज वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ओके, तो गुजरात की राइट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, उसको आपके चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। तो अब हमें पढ़ना है कि ये सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। और इस डेवलपमेंट का जो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि ये हमें देखने को मिला कि हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी लेकर के बीजेपी आगे बढ़ी थी, उसको एक के बाद दूसरे मुद्दे मिलते गए और इसका नतीजा ये हुआ कि उसका सपोर्ट बेस जो है वो बढ़ता गया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, emergence of a new consensus। ठीक है, सो 1989 के बाद का जो पीरियड है उसको ऐसा माना जाता है, ये ऐसा पीरियड है जिसमें कांग्रेस डिक्लाइन होता है। अगर कांग्रेस का ग्राफ देखें तो कांग्रेस ऊपर से नीचे जाता है और बीजेपी का ग्राफ देखें तो बीजेपी नीचे से ऊपर जाता है। एकदम सिंपल सा अगर हमें ग्राफ बनाए तो कांग्रेस इज गोइंग डाउन एंड बीजेपी इज गोइंग अप। दिस इज कांग्रेस एंड दिस इज बीजेपी। और ये जो टाइम हमारा स्टार्ट हो रहा है ये 1989 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर इधर हम सीट्स को देखें तो जो हमारे सीट्स इधर है और ईयर इधर है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो ये जो ग्राफ है इसमें एकदम क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस
अपनी सपोर्ट बेस खोती जा रही है, सीट्स कम होते जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वोट कम होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ सारी चीज़ें बीजेपी की बढ़ते जा रही हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर इनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो देखते हैं 1984 में, जबकि बीजेपी ने दूसरा इलेक्शन लड़ा था 80 के बाद 84 में 2 सीट मिली थी बीजेपी को और कांग्रेस को 415 सीट मिली थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर हम 89 में देखते हैं तो 2 सीट से सीधे 85 सीट्स पे आ गया, शाहबानो केस आ चुका था। 91 में 221 सीट्स पे आ गया, क्योंकि इस समय बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था काफ़ी गर्म था। और दूसरी तरफ कांग्रेस नीचे गिरता जा रहा है, 415 से 197 पे आता है और 91 में वो भी 244 पे पहुंच जाता है। इस तरह से ऊपर नीचे होते होते जो चीज़ें हैं वो यही समझ में आ रही हैं कि सीट्स के मैटर में भी और सीट के कॉन्टेक्स्ट में भी और वोट शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी कांग्रेस डिक्लाइन में जा रहा है, ठीक है। और कांग्रेस जो है उसमें काफ़ी टफ कंपटीशन में वो इंगेज था। और अगर हम देखें तो ये भी देखते हैं कि 89 के इलेक्शन के बाद से जो वोट दोनों पार्टीज़ को मिले, उसमें अगर दोनों पार्टीज़ को अगर मिला भी दे, मेन 2 ही पार्टी नज़र आ रहे हैं 89 के बाद से, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी, तो अगर दोनों को मिला भी दें तो भी हम क्या देखते हैं, ये मोर देन 50% नहीं हो रहा है। तो आखिर जो बात है वो ये है कि अगर 50% से कम ही लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वोट दे रहे हैं तो बाकी का जो 50% है वो कहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये समझना कि नेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज ही रोल प्ले कर रही है, इट विल बी रॉन्ग। Actually, regional parties have also become so much important during this period because of the starting of the coalition, है ना। और अगर दोनों चार्ट को हम देखते हैं, जिसमें एक में सीट्स का दिखाया गया है कि किस तरह से सीट्स डिक्लाइन हो रहे हैं कांग्रेस के और बीजेपी का बढ़ रहा है, दूसरे में वोट शेयरिंग दिखाया गया है, तो हम यही देखेंगे कि neither part of Congress family of parties nor part of जनता family of parties among the parties that exist today। आज के समय का जो हमारा पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है ना। और इसके बाद हम इस बात पे फोकस करेंगे कि आज के समय में किन चीज़ों पे हमारे बीच में कंसेंसस जो है वो बन चुकी है। We have consensus on some issues. We may belong to Congress, we may belong to BJP, we may belong to any other regional parties, but there are some issues on which, some issues of national politics on which all the political parties have consensus। वो सभी इस पे एक मत हैं, उनके जो व्यूज़ हैं वो डिफर नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है अग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो दिस इज कंसेंसस। कंसेंसस मतलब हर कोई इसको मान रहा है, इस पर सबकी एक राय है। पहला दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कहा गया है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे पूरा का पूरा हमारा फोकस था। और उस समय हालांकि जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो कांग्रेस उस समय रूल में थी, पी.वी. नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह वॉज द चीफ फाइनेंस मिनिस्टर। एंड तो जो अपोजिशन पार्टीज थी लाइक बीजेपी, उन्होंने अपोज किया था उस समय, लेकिन जब अगेन द बीजेपी इटसेल्फ केम टू पावर देन दे वर ओनली परसुइंग दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इससे अब हम पीछे नहीं जा सकते, है ना। चाहे कोई भी अपोजिशन में रहने पर हम उसको क्रिटिसाइज भले कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पावर में आ जाएंगे तो हमको इसी इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ये अब हम पीछे नहीं आ सकते, है ना। और इसी से कंट्री की प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा बढ़ गया है, हम एक इकोनॉमिक पावर के रूप में हम जाने जा रहे हैं। तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो इस पर एक मत हो गए हैं हम सभी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो जिस पर हम सबके बीच में यूनानिमिटी हो गई है सारे पार्टीज़ के बीच में, वो ये है कि जो बैकवर्ड कास्ट है हमारे, है ना, उनकी जो पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स है उसको सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस ऑफ
acceptance of social and political claims of the backward castes. जितने भी बैकवर्ड कास्ट हैं वो सभी उनके जो क्लेम्स हैं उसको हर पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है. एंड द थर्ड वन is the acceptance of the role of state level parties in the governance of the country, because what we find that earlier there was a distinction between state level and national level parties, but now after 1989 till today we can say that this distinction is becoming less important, and we find that state level parties are also sharing power at the national level, and this is very much important thing, and they are playing a very central role in the country's politics in the last 20 years or so. So more than 20 years, we can see in the last 30 years. So this is also one of the thing about which there is consensus among the political parties. So acceptance of the role of state level parties. Acceptance of the role of state level parties in national politics. Okay, and next we find that there is emphasis on pragmatic consideration. Pragmatic means according to reason. Principles, ideologies are not important. Okay, in today's in recent political development, this is the consensus where the political parties are not very much trying to stick to their ideological position. Still, but they find that political alliances should be there, and there is no need of ideological agreement, because coalition politics has started, and in this coalition politics so many parties are coming together. The parties which are having different ideologies, the parties which are having completely opposite ideologies, they are together. So this is pragmatism, है ना. So pragmatic consideration has become more important, and most parties like अभी जो हमारा NDA है, National Democratic Alliance, most of the parties of this NDA did not agree with the Hindutva ideology of the BJP. Still they are together. They are together because they have to form the government, they have to run the government. So this is also one of the important consensus, that there is emphasis on pragmatic consideration. So this is our last point. Okay. Emphasis on pragmatic consideration. So these are the factors. So now we find that these changes are coming in our political system, and what we find that when our politics started after independence, there was emergence of Congress as a single dominant party, and there was no existence, we can say opposition party was existing, but there were not any important role to play. In the previous 10 or 15 years we have seen this, we have discussed this. But now what we find that at present, what is the condition of our politics, that now BJP has almost taken the place of Congress,
and even today again we have reached to that situation only, where the opposition has become so weak that official opposition party is also not there, because at least 10% of the total membership should be there with the opposition party, but it is not there. So this is the thing, how things are taking place, and we hope that in future there will be at least two strong party. Congress is there, yes, but it is losing its base very rapidly. We can say number of seats, percentage of votes, everything is decreasing. But in order to have a healthy democracy, it is very much important that there must be at least two important options in front of the people. The people should not be left with no other option but to choose only one party. That should not be there. If we want that democracy should become healthy, it is very much important that there should be place for there should be an alternative to the people of the country. So this is all. We have completed the chapter, and this is the end of the chapter, and now from tomorrow onwards we will start revision.